Dear students, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. Today we are starting with the new chapter, Statistics. In this video we are discussing about the mean of ungrouped and grouped data. So first we are considering some basic concept. So we already studied in the previous class about the classification of given data into ungrouped data as well as grouped data frequency distribution. That we already learned in previous section or previous class. What is called the ungrouped data, what is grouped data, frequency distribution, all these things we already learned in the previous class. We have also learned how to represent the data pictorially in the form of various graphs such as bar graph, histograms, and equal and unequal length of the class and frequency polygons. All these things we already learned. For a given data, a single value of the variable representing the entire data which describes the characteristic of the data is called an average of the data. Means a single value of the variable representing the entire data. We have n number of data. From that we find a single value that represent the average of the data. So an average tends to lie centrally because we find the average that means middle value, so it lies centrally. So we call average a measure of central tendency of the data, and there are three major types. One is mean, median and mode. In this chapter we learn about mean, median and mode, and in this video we will start with the mean of grouped and ungrouped data. So let us revise some examples. So first example is, if the mean of 7, 10, 4, 12, x, 3 is 7.5, find the value of x. So as you know that if you have n number of data, x1, x2 up to xn, that is n number of data or n numbers of data or n number of students or n number of marks. So the equation of mean, that is x bar, is equals to, mean is represented by x bar, that is equals to addition of all the data x1 plus x2 up to xn divided by total number of data, that is n. So this addition we can represent it by sigma sign. Sigma I is equals to 1 to n xi upon n. Sigma, that means addition, summation. I equal to 1 to n. I starting with 1, so x1. Then sigma means plus. Then I increasing 1, then 2. So we write here first x1, sigma, that means plus. Then I increasing from 1 to 2, that is x2 plus x3 plus up to last value is n, up to xn divided by n. That is called mean x bar. So by using this formula, x bar is equals to, that is already given mean, that is 7.5, and that is equals to addition of all the datas, that is 7 plus 10 plus 4 12 x 3 divided by total number of data 1 2 3 4 5 6 divided by 6. Clear? Okay. So that is, I am directly writing here summation because एडिशन कैसे करना है वो आपको आता है, तो वो मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है. तो मैंने पहले से एडिशन किया हुआ है साइड में, तो मैं वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे. दैट इज 36 प्लस एक्स डिवाइड बाई 6, दैट इज इक्वल्स टू 7.5. मैं ये वीडियो में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो नहीं सिखाऊंगा, वो आपको खुद से करना होगा, वो आपको आता है. ठीक है, क्लियर? So that is equals to 36 plus x, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, that is 7.5 into 6, that is equals to 45, and so x is equals to 36 इस साइड जाएगा, that is 45 minus 36, that is 9. So your missing data x is equals to 9. Clear? यहाँ पे हमें x फाइंड करना था, so x is equals to 9. Clear? First. Second, that is good sum. The marks obtained by 15 students in a class test.
The marks are as follows: 16, 9, 14, 11, 13, 6, 18, 15, 10, 12, 9, 5, 11, 8 and 17. Find first their mean marks. Means आपको mean find करना है. So first mean marks, that means x bar is equals to sigma 1 to n xi डिवाइड बाय n. मीन्स जितने भी ऑब्जर्वेशंस है, कितने ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Total 15 observations are there. So your n is equals to 15. Okay, now we have to find summation of all the data. That means 16 plus 9 plus 14 plus 11 up to all the data, that is 17. So this addition, that is equals to 174. Again I am telling you, मैं यहाँ पे आपको कैसे एडिशन करना है वो नहीं दिखाऊंगा, वो आपको खुद से कर लेना है. एक खास बात, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना इस चैप्टर के लिए, खुद से एडिशन करना. कैलकुलेटर यूज मत करना, बिकॉज एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. तो एक बार कैलकुलेटर की आपको आदत लग गई, प्रैक्टिस हो गई, फिर आप खुद से करोगे तो आंसर गलत आएगा. सो पहले से आप प्लीज़ कैलकुलेटर यूज मत करना, खुद से ट्राई करना एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का. सम आ गया, एन आ गया. सो वी कैन फाइंड एक्स बार, दैट इज 174 डिवाइड बाई 15, दैट इज 11.6. ये डिवीजन भी आपको आना चाहिए. 174 ऐसे डिवाइड करना, डिवाइड बाई 15, 1 जा 15, 2 4 आएगा, 15 1 जा 15, 2 जा 30 हो जाएगा, 15 1 जा 15, 0 0 15.6 जा 90. क्लियर. सो 11.6. अगर ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको 3 डेसिमल तक करना है. ठीक है, कहाँ तक? अप टू 3 डेसिमल पॉइंट, नॉट अप टू 2, अप टू 3 डेसिमल पॉइंट, ध्यान रखना ये. क्लियर. तो एक्स बार आ गया. ओके. सेकेंड, इफ मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड बाय 3. हर एक के मार्क्स कितने इंक्रीज कर दिए? 3. ये 16 प्लस 3, 9 प्लस 3, 14 प्लस 3, टोटल कितना है? n इक्वल्स टू 15. समझ में आ रहा है? सो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर सेकेंड ऑन इंक्रीजिंग, कितना इंक्रीज किया हमने? 3 मार्क्स. 3 मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, on increasing 3 marks of each student, so that is equals to total 15 number of students and 3 marks for each student, so total increasing is 45. समझ लो एक बार फिर से, इसके 3 मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, इसके भी 3 मार्क्स, इसके भी 3 मार्क्स, सबके 3 मार्क्स इंक्रीज होंगे तो टोटल 15, और हर एक के 3 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं तो 15 इंटू 3, दैट इज 45 मार्क्स टोटल इंक्रीज हो गया. सो न्यू सम, ओल्डर वन इज, that is 174. So 174 plus 45, that is 219, that is 219. आपका n तो सेम रहेगा 15, वो चेंज नहीं हो रहा है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने इंक्रीज नहीं किए, सिर्फ हर एक के मार्क्स इंक्रीज किए, दैट इज बाई 3. सो न्यू एक्स बार इज इक्वल्स टू, न्यू सम कितना आया? 219 डिवाइड बाय 15. सेम फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई बाय एन, तो वो आ रहा है 14.6. क्लियर. अभी देखो, ओल्ड एक्स बार कितना था? 11.6. न्यू एक्स बार कितना आया? 14.6. ठीक है, और हर एक में हमने कितना इंक्रीज किया? 3 मार्क्स इंक्रीज किया. तो देखो 11.6 प्लस 3, वो क्या आ रहा है? 14.6. तो इसमें से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम हर एक स्टूडेंट के मार्क्स 3 से इंक्रीज कर रहे हैं बाई 3, then your new mean is also increasing by 3. So one general formula, new x bar is equals to old x bar plus हमने कोई वैल्यू y से हमें उसको इंक्रीज किया हर एक नंबर को. सो दैट इज योर फाइनल आंसर. जैसे यहाँ पे 3 की जगह पे 5 दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? ओल्ड एक्स बार तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, दैट इज 11.6. अभी हर एक का मार्क्स कितने से इंक्रीज हो रहा है? बाय 5 मार्क्स. So you have to simply do 11.6 plus 5, that is 16.6. क्लियर. समझ में आ रहा है? चलो ये हो गया एडिशन का. अभी नेक्स्ट
द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। हर एक में से मैंने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से भी 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो ऑन डिक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीज किया था, ऑन डिक्रीजिंग 2 मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट दैट इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2, तो कितना डिक्रीज हो गया, 30 मार्क्स डिक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है कितना हो गया डिक्रीज, 15 इंटू 2 दैट इज 30। ओके, सो न्यू सम इज इक्वल टू 174। इतना था टोटल, पहला कितना था 174। अभी क्या होगा, हमने हर एक में 2 मार्क्स डिक्रीज किया, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 30 डिक्रीज हो जाएगा, सो -30 दैट इज 144। जैसे यहाँ से मैंने 2 डिक्रीज किया, यहाँ से 2, यहाँ से 2, हर एक में से 2 डिक्रीज हो गए, टोटल 15 इंटू 2 30 मार्क्स टोटल में से डिक्रीज हो गए। सो टोटल हमारा था 174, उसमें से हमने कर दिया -30, सो न्यू सम विल बी 144 एंड एन तो हमारा वही रहेगा 15, क्योंकि हमने स्टूडेंट डिक्रीज नहीं किया, उनके मार्क्स डिक्रीज किया है। सो न्यू एक्स बार फॉर सब्ट्रैक्शन दैट इज न्यू सम इज 144 डिवाइड बाय 15। So 144 divided by 15 is equals to 9.6। अगेन यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, हमारा न्यू एक्स बार क्या आया 9.6, ओल्ड एक्स बार क्या था हमारा 11.6। चलो अभी कितना मार्क्स हमने डिक्रीज किया 2, चलो इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर ही दो, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 9.6 आ गया हमारा न्यू। क्लियर, दैट मीन्स न्यू एक्स बार इज इक्वल्स टू ओल्ड एक्स बार माइनस वाई। वाई मीन्स हमने जो मार्क्स सब्ट्रैक्ट किए हर एक में से वो आ जाएगा। क्लियर, थर्ड। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स आर डबल्ड। डबल मीन्स 16 का डबल कर दिया, 9 का डबल, 14 का डबल, मीन्स 15 स्टूडेंट्स है, उसका पहले एडिशन कितना था 174, अभी हर एक का डबल कर दिया, तो सम भी क्या हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा। क्लियर, सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी ऑन डबलिंग द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट न्यू सम इज इक्वल्स टू 174 इंटू 2 दैट इज 348। क्या हो गया न्यू सम, दैट इज 348 एंड हमारा n तो 15 ही है, सो न्यू एक्स बार दैट इज 348 बाय 15 दैट इज 23.2। अगेन देख लो यहाँ पे आप, न्यू एक्स बार कितना आया 23.2, ओल्ड एक्स बार कितना था 11.6, हर एक को मैंने डबल किया, तो डबल किया तो मीन्स इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो आ जाएगा 23.2, तो अगेन आ गया न्यू 1। सो एक फॉर्मूला बन गई, न्यू एक्स बार इज इक्वल्स टू ओल्ड एक्स बार मल्टीप्लाई बाय, जिससे भी हम डबल कर रहे हैं, 3 टाइम्स कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, ओके। अगर स्टिल आपको किसी में डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। Now next, we are starting with the new concept that is mean of ungrouped data। तो फर्स्ट हमने जो देखा वो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है मुझे x1, x2, x3 अप टू xn, जो हमने यहाँ पे स्टडी किया, x1, x2, x3 अप टू xn ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेटा और वी कैन से ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। बट अभी इसमें एक नया कंसेप्ट ऐड हो रहा है, फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3 अप टू fn। सो व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी, इफ अगर हमें दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास, ठीक है, तो एक क्लास में मार्क्स अगर किसी का स्टूडेंट है उसके 10 मार्क आ गए, किसी के 20 आ गए, किसी के 25, किसी के 45, ठीक है, तो 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे एक तो होगा नहीं, कितने हो सकते हैं 3, 4, 5 कितने भी हो सकता है। सो इफ देर आर 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 10 मार्क्स, इफ देर आर
2 students, if there are 5 students, if there are 0 students who score 45 marks, that means that is your marks obtained, that means this is your observation, that is your observations, and 3, 2, 5, 0 that is your फ्रीक्वेंसी, मीन्स 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 3, 20 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे हैं, 25 मार्क्स वाले 5, 45 मार्क्स वाले एक भी नहीं है, 0. सो दैट इज योर फ्रीक्वेंसी. क्लियर? समझ में आ रहा है? सो ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी अगर दिया हुआ है तो एक्स बार क्या होगा? एक्स बार का हमारा फॉर्मूला वही है, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई अपॉन एन, मीन्स एक्स आई जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसके एडिशन, x1 प्लस x2 प्लस up to प्लस xn डिवाइड बाय n, बराबर. बट अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 10 मार्क्स वाले 3 बच्चे, 10 मार्क्स वाला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मीन्स 10 into 3 करना पड़ेगा. 20 मार्क्स वाले 2, 20 into 2 करना पड़ेगा. 25 मार्क्स वाले 5, यहाँ से ज़्यादा हो गया, चलो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, लिखना ईजी हो जाएगा. 25 और 25 into 2 हो गया, और 45 वाला एक भी नहीं है, यहाँ पे 45 ऐड करने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे 45 into 0. अभी आप समझो, यहाँ पर अगर मैं x1 प्लस x2 प्लस up to xn कर रहा हूँ, सबका एडिशन, ऑब्जर्वेशंस का एडिशन, तो यहाँ पे मुझे 10 मार्क वाले 3 बच्चे का एडिशन करना पड़ेगा, 20 मार्क्स वाले 2 बच्चे उसका एडिशन करना पड़ेगा, 25 मार्क्स वाले 2 बच्चे उसका एडिशन करना पड़ेगा, और 0 मार्क्स वाले अगर 1 मार्क वाले 2 मार्क वाले सारे बच्चे हैं जितने भी, वो सबका एडिशन करना पड़ेगा. सो दिस विल बी योर सिग्मा एक्स एंड दिस विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो हमने उसको क्या किया? फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. मीन्स 10 मार्क वाले 3 बच्चे, तो 10 into 3 30, डायरेक्ट एडिशन आ गया, ये हो गया 40, ये हो गया 50. सिर्फ इसका एडिशन करो. दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया x, और ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी. 3 बार आ रहा है स्टूडेंट, तो हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे? ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी. फिर जाके हम उसका एडिशन कर रहे हैं. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, आपको पहले x1 f1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x2 f2, x3 f3 अप टू xn fn, सबका एडिशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आपका हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई. सिग्मा एक्स आई की बजाय अभी क्या आ जाएगा? पहले आप फ्रीक्वेंसी के साथ उसका मल्टीप्लाई करो, देन उसका एडिशन करो, जैसे मैंने यहाँ पे किया. पहले फ्रीक्वेंसी के साथ उसका मल्टीप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई, देन एडिशन. सिमिलरली यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई, देन सबका एडिशन, दैट इज योर सिग्मा एफ आई एक्स आई. और डिवाइड बाय हमारे यहाँ पे क्या था? एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितने हैं? कितने बच्चे हो गए? 10 मार्क वाले 3 है, 20 मार्क वाले 2, 25 मार्क्स वाले 3, तो 3 + 2 + 2 इतने बच्चे हो रहे हैं क्लास में. दैट मीन्स सारी फ्रीक्वेंसी जो है हमारा, उसका सबका एडिशन. सो f1 प्लस f2 प्लस up to प्लस fn, सो दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई और डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई. मीन्स आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ऑब्जर्वेशंस क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तभी आप ये फॉर्मूला समझ सकते हो. मैंने यहाँ पे क्यों है सिग्मा एफ आई किया? बिकॉज जैसे यहाँ पे 10 मार्क्स वाले 3 बच्चे हैं, तो एक क्लास में 3 बच्चे हो गए, एक बच्चा नहीं हुआ, कितने हुए? देयर आर टोटल 3 स्टूडेंट्स ऑफ हु स्कोरिंग 10 मार्क्स, 2 स्टूडेंट्स हु स्कोर 20 मार्क्स, 2 स्टूडेंट्स हु स्कोर 25 मार्क्स. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 3 + 2 + 2, दैट इज 7 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. समझ में आ रहा है? क्लियर? तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 है तो 4 स्टूडेंट हो गए, नहीं. 10 मार्क वाले कितने बच्चे हैं? 3, तो यहाँ पे इसको एडिशन करना पड़ेगा. मीन्स आपको जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसका क्या करना पड़ेगा? एडिशन, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी का हमने एडिशन कर दिया, दिस विल गिव टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो दैट इज योर न्यू फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. आपको कैसे याद रखना है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. क्लियर? चलो इसके ऊपर एक सम करते हैं हम. क्वेश्चन, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स. अगर 100 स्टूडेंट्स दिया हुआ है तो 100 ऑब्जर्वेशन तो ऐसे लिख नहीं सकते, तो उसके लिए मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही करना पड़ेगा, वही बेटर होगा. द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 100 स्टूडेंट्स ऑफ 2 क्लासेस इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग 100 मार्क्स आर एज फॉलोज. आउट ऑफ 100 मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स कितने हैं? 15, 15, 20, 25, 32, 35, 45, 50, 60 एंड 70. बट 15 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? 2. सो दैट इज योर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस. जो ऊपर दिया हुआ है दैट इज योर ऑब्जर्वेशन, और जो नीचे दिया हुआ है 15 मार्क्स वाले 2 बच्चे, 20 मार्क्स वाले 3, 35 मार्क्स वाले 10 बच्चे, 45 मार्क्स वाले 12 स्टूडेंट्स, 70 मार्क्स वाले 6 स्टूडेंट्स,
सो दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली और यहाँ पे 77, 80 अप टू 99 सबका दिया हुआ है। ठीक है, अभी फाइंड क्या करना है, फाइंड मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड, फाइंड मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। हमें मीन मार्क्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे मीन मार्क्स फाइंड यहाँ पे हम, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बनाते हैं फर्स्ट, यहाँ पे टेबल बनाते हैं क्योंकि वहां पे तो पॉसिबल नहीं होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड, दैट इज कॉल्ड XI। देन सेकेंड कॉलम हमारा कहाँ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज FI। एंड देन चलो पहले इतना लिख लेते हैं, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, ये सारे मार्क्स ऑब्टेन है यहाँ पर, तो सबका एक टेबल बनेगा। क्लियर, तो मैं टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे 15, 20, 25, 32, 35, 45, 50, 60, 70, 77। एट्टी, 85, 90, 92, 95, 99 हो गया। अभी साइड में क्या लिखना पड़ेगा, उसका फ्रीक्वेंसी 2374, 2374। यूनिट प्लेस सब एक के नीचे एक आना चाहिए, टेंस प्लेस एक के नीचे एक आना चाहिए, ध्यान रखना आप। 10, 12, 9, 8, 6, 8, 11। तो अभी आप अच्छे से एडिशन कर पाओगे, हर एक के नीचे एक होगा तो 6, 8, 11। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। 11 4 80 है, करेक्ट है, 11 4 80, ओके। 9 4 2 3 2, 9 4 2 3 2। यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस नीचे आना चाहिए, तभी आप उसका क्या कर पाओगे, एडिशन। क्लियर, ओके। अभी हमारा मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1 to n, 1 to n लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा। चलो सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सिग्मा FI XI मीन्स ये आपका XI, ये आपका FI। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, बिकॉज 15 मार्क वाले दो बच्चे, जैसे मैंने यहाँ पे किया था 10 मार्क्स वाले 3, सो 10 इंटू 3, 20 इंटू 2। सिमिलरली यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा XI FI XI फाइंड करना पड़ेगा, 15 इंटू 2 तो आ जाएगा 30। क्लियर, मैं मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। देन 60, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस सब एक के नीचे एक आना चाहिए। देन 175, 128, 350, 540, 450, 480, 420, 616, 880, 765, 360, 184, 285 एंड 198। ठीक है, ये कैसे आया, 15 2 जा 30, 23 जा 60, 25 7 जा 175, 32 4 जा 128। ये सब FI XI का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया। अभी क्या फाइंड करना है मुझे, उसका एडिशन। सिग्मा मीन्स एडिशन ऑफ ऑल दिस वैल्यूज, दैट्स वाई हमें कैसे लिखना है, यूनिट प्लेस सब साथ में होगा तो आप इजीली एडिशन कर पाओगे। ठीक है, इसका एडिशन आ रहा है यहाँ पर सिग्मा FI XI इज इक्वल्स टू 5921। ये सबका एडिशन आ गया 5921। और यहाँ पे सिग्मा FI कितना आ रहा है एडिशन करके 100। वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 5921 डिवाइड बाई 100, दैट इज 59.21। ये आपका हो गया x बार, मीन वैल्यू ऑफ मार्क्स जो हमें फाइंड करना था वो।
ये एडिशन कैसे करोगे, 8 + 5 + 4 + 5, ये जो आ गया वो हो गया आपका 1, फिर कैरी फॉरवर्ड होगा, जो कैरी होगी वो, फिर अगेन एडिशन करो, फिर कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर एडिशन, दैट इज योर 5921 एंड सिग्मा एफ आई, इसका एडिशन करके आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई, फॉर्मूला है हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने फाइंड किया, सिग्मा एफ आई फाइंड किया, दोनों का डिवीजन 100 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स 2 डेसिमल पॉइंट हमें कट करना है, 59.21, क्लियर, ओके। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे इतने सारे डेटा थे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, देखो ये मल्टीप्लिकेशन करना है, बहुत वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, फिर उसका एडिशन करो और वैल्यू बड़ी हो रही है, अगर यहाँ पे 100 की बजाय कुछ और नंबर होता तो डिवीजन भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है। तो जो ये मार्क्स दिए हुए अनग्रुप में, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, ग्रुप डेटा में, ठीक है। सो इन प्रैक्टिस द डेटा आर लार्ज, सो अ मीनिंगफुल स्टडी वी हैव टू कन्वर्ट द डेटा इनटू ग्रुप डेटा। जो अभी हम प्रीवियस एग्जांपल में देखा वो क्या था, हमारा अनग्रुप डेटा था। अगर हम जनरली देखें तो बहुत बड़े डेटा होते, इतने डेटा नहीं होते, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसके लिए हमें उसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कन्वर्ट द अबाउ डेटा इनटू ग्रुप डेटा। मैं सेम एग्जांपल कंसिडर करूंगा फॉर दिस, ठीक है। सो बाय फॉर्मिंग क्लास इंटरवल ऑफ विद इन विड्थ ऑफ 15, क्लास इंटरवल ऑफ विड्थ एडी है, विड्थ ऑफ 15। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, ये आपको याद रखना है। वाइल अलोकेटिंग फ्रीक्वेंसी, चलो मैं समझाता हूँ, जब मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तब समझाता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे कितनी विड्थ लिया हुआ है 15, आप 10 की भी विड्थ ले सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, पर जनरली हम पहले करते हैं 15 की विड्थ लेके। आपको ऐसा एग्जाम्पल नहीं आएगा कि ऐसा आपको दिया हुआ है उस अनग्रुप डेटा, उसको आप ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करो फिर कैलकुलेट करो, ऐसा नहीं पूछते जनरली, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट ये हम क्यों कर रहे हैं वो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमने कंसिडर किया यहाँ पे विड्थ ऑफ 15, तो एक टेबल बनाते हैं, क्लास इंटरवल, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल, ये हो गया आपका एक्स आई, ये हो गया आपका एफ आई। यहाँ पे एक्स आई एफ आई नहीं लिखते, चलो जाने दो इसको। क्लास इंटरवल हम डिवाइड करेंगे, पहले कितना है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 15 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख रहा हूँ 10 to 25, विड्थ ऑफ 15, ठीक है। फिर नेक्स्ट 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 एंड 85 to 100। ये हो गया 15 के विड्थ में हो गया सब। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है वो देखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो 10 to 25, यहाँ पे कितने हैं, 25 तक देखना है हमें, 25। तो अगर यहाँ पे 7 + 3 + 2, 7 + 3 10, 10 + 2 12 हो गए। बट यहाँ पे मैं 12 लिखूंगा, 25 यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी 25 है। तो यहाँ पे जो 25 की जो फ्रीक्वेंसी है 7, वो हमें कहाँ कंसिडर करनी है, वो हमें नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करनी है। तो यही ये पॉइंट लिखा हुआ है, वाइल अलोकेटिंग द फ्रीक्वेंसी टू ईच क्लास इंटरवल, अ स्टूडेंट अचीविंग वैल्यू इक्वल टू अपर क्लास लिमिट वुड बी कंसिडर टू बी नेक्स्ट क्लास। इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, और जो इसको बोलते हैं हम अपर क्लास लिमिट। सिमिलरली लोअर क्लास या अपर क्लास, लोअर क्लास अपर क्लास लिमिट, बराबर। तो जो 25 यहाँ पे दोनों जगह पे है, तो 25 का जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें कहाँ पे कंसिडर करनी है, नेक्स्ट इंटरवल मीन्स जहाँ पे लोअर क्लास आ रहा है वहाँ पे कंसिडर करना है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये 25 काउंट नहीं होगा, किस में काउंट नहीं होगा, ये 10 to 25 वाले में ये 25 7 जो है फ्रीक्वेंसी वो काउंट नहीं होगी। 10 to 25 में कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी, 3 + 2 5, बिकॉज ये 25 कहाँ जाएगा, नेक्स्ट में जाएगा। मीन्स ये 25 यहाँ पे क्लास इंटरवल में आ रहा है, यहाँ पे आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट में, तो आपको उसको लोअर लिमिट में कंसिडर करना है। जैसे लोअर लिमिट यहाँ पे 25 यहाँ पे है, उसमें आपको कंसिडर करना है, अपर लिमिट में कंसिडर नहीं करना है, सिंपल। तो 25 का जो 7 है वो मैं यहाँ पे लोअर लिमिट किस में है, इन दोनों में से लोअर लिमिट यहाँ पे है, तो मैं ये 25 का जो 7 है वो मैं यहाँ पे लोअर लिमिट में कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो 25 to 40 तक जाना है, 25 to 40 मीन्स यहाँ तक हो गया, इसका एडिशन 21 हो गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा 21। 40 to 55, तो 40 to 55 मीन्स यहाँ तक आएगा,
ये हो गया अगेन 21। वैसे आपको सारे एडिशन करना है तो आ रहा है 8, 25 एंड 20। ठीक है, तो ये बन गया आपका टेबल। ओके, समझ में आया कैसे बनाया मैंने? क्लियर? नाउ एज वी नो दैट, जस्ट अ मिनट, ये पेज उड़ेगा यहाँ पे मैं। ओके, नाउ फाइन। नाउ एज वी नो दैट फॉर्मूला x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। बट यहाँ पे हमारा xi क्लियर था, 15, 20, 25 हमारा xi था। बट अभी यहाँ पे xi क्या होगा? ये तो क्लास बन गए, तो xi हियर xi इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास। xi क्या हो जाएगा हमारा? मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास। ठीक है, so here we assume that the frequency, जो ये frequency है, the frequency of each class interval is centered around its midpoint। मीन्स xi मेरा मिड पॉइंट हो गया ऑफ अ क्लास। इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 20 + 10 30 35 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है वो देख लो यहाँ पर। क्लास मिड पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू अपर लिमिट ऑफ क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट यहाँ पे क्या है? 10। लोअर लिमिट, सॉरी, अपर लिमिट क्या है? 25। लोअर लिमिट क्या है हमारा? लोअर लिमिट लिखा है मैंने, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। अपर लिमिट 25, लोअर लिमिट 10। 10 + 25 डिवाइड बाई 2, 35 बाई 2 दैट इज 17.5। तो मेरा xi हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर? क्लास मिड पॉइंट। तो पहले का क्लास मिड पॉइंट हो गया x1, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? हियर वी अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल, मीन्स ये जो 10 to 25 क्लास इंटरवल हो गया उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। इज सेंटर्ड अराउंड इट्स मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 17.5। तो ये जो फ्रीक्वेंसी 5 है वो हमने अज्यूम कर लिया, वो किसकी फ्रीक्वेंसी है? 17.5 की फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 15 का फ्रीक्वेंसी 2 था, 20 का फ्रीक्वेंसी 3, 25 का फ्रीक्वेंसी 7 था, वैसे ही यहाँ पे ये जो 10 to 25 क्लास है उसका मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट हो गया मेरा 17.5 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5। वैसे इसका मिड पॉइंट फाइंड करो, उसकी फ्रीक्वेंसी 21, इसका मिड पॉइंट, उसकी फ्रीक्वेंसी 21। समझ में आ रहा है? तो इस पे से क्या बन जाएगा आपका? टेबल बन जाएगा। चलो टेबल बनाते हैं अभी। तो पहला हो जाएगा मेरा क्लास इंटरवल, देन क्लास इंटरवल, देन नेक्स्ट क्या था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हो गया fi। देन मेरा आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ xi। ठीक है, चलो पहले इतना फाइंड करते हैं। क्लास इंटरवल क्या है मेरा? आगे से टेबल में से देख लो, 10 to 25, ये 20 to 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। ठीक है, तो 5, 21 ये सब फ्रीक्वेंसी उसकी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास इंटरवल हो गया 10 to 25, देन 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 एंड 85 to 100। ठीक है, हर एक की फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ मैं, टेबल में से लिखा है मैंने, और कुछ नया नहीं किया है। आपको ध्यान रखना है यूनिट प्लेस साथ में होना चाहिए। देन 8, देन 25 एंड लास्ट में 20। अभी मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट मीन्स एडिशन ऑफ दिस 2 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 17.5। ठीक है, फिर आ जाएगा 40 + 20 65, 32.5,
फिर हो जाएगा 47.5, ठीक है। 50.70 का मिड पॉइंट हो जाएगा 62.5, 72.5 और ये हो जाएगा 92.5। मिड पॉइंट मिल गया। ओके, ये टेबल आपको ऐसे बनाना है, ये सारी लाइन पेंसिल से टेबल बनाना है आपको, ठीक है। उसमें कुछ सब पेन से मत कर देना, ऐसे स्केल यूज करना है, पेंसिल यूज करना है। चलो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो मुझे एफ आई एक्स आई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर का यूज मत करना, ध्यान रखना ये खास। ये आपको खुद से मल्टीप्लाई करना है यहाँ। फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई मीन्स इसका एडिशन, सिग्मा एफ आई एक्स आई एडिशन क्या आएगा, ये सबका आपको यूनिट प्लेस और सब ये एडिशन करना है। तो एडिशन करके आ रहा है आंसर 6055, एडिशन होके आ गया, ओके 0.0। सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है 100, तो एक्स बार हो गया 6055 डिवाइड बाई 100, दैट इज 60.55, ठीक है। चलो अभी इसमें से हम कुछ कंक्लूड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो फाइंड किया, इसका मीन एक्स बार सेम डेटा, उसका मीन आया 59.21। अभी यही डेटा का मैंने ग्रुप डेटा में क्लास में कन्वर्ट किया, क्लास में कन्वर्ट करके फिर उसका मीन फाइंड किया, तो वो आ रहा है 60.55 और यहाँ पे था 59.25। अभी आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पर कि दोनों सम सेम है, दोनों में से करेक्ट मीन कौन सा हुआ। सो योर करेक्ट मीन और एग्जैक्ट मीन इज 59.29 एक्स बार, क्योंकि हमने हर एक नंबर यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। जबकि यहाँ पे हमने क्या किया, उसको क्लास इंटरवल में कंसिडर कर लिया, क्लास इंटरवल का हमने फिर अज्यूम कर लिया उसको मिड पॉइंट में, और ये मिड पॉइंट जो आ रहा है उसकी हमने फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर ली 5। जैसे यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ये आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5। बट जबकि यहाँ पे क्या है आपका, ये 10 to 25 जो टोटल मार्क्स है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 15 वाले 2 है और 20 वाले 3 है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं 17.5 ऐसा कोई डेटा ही नहीं है, 17.5 डेटा है नहीं है। बट जबकि यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया 17.5 और उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, ज्यूम कर रहे हैं। तो ये मीन जो आ रहा है वो आपका क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट मीन। समझ में आ रहा है, अप्रोक्सीमेट मीन हो गया। क्लियर। जब भी डेटा बड़ा होता जाएगा, ऐसे 100 नंबर ऑफ डेटा होंगे, तब ऐसे आप नहीं कर सकते, दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो आपको उसको ग्रुप डेटा में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज सिंपलर मेथड। और यहाँ पे 59.21 और 60.5 इसमें इतना कुछ चेंज नहीं आ रहा है। और जब नंबर ऑफ डेटाज इंक्रीज होंगे तो ये एरर और कम हो जाएगी। तो वी कैन डू बाय ग्रुप डेटा, दैट इज सिंपल मेथड। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके तो कोई डाउट है इसमें आपको, अप्रोक्सीमेट मीन आ गया। क्लियर। तो जो हमने ये मेथड किया, ये मेथड जो हमने किया उसको हम क्या बोलते हैं, दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट मेथड। मीन्स जब भी आपको सम डायरेक्ट मेथड से करने के लिए बोला है स्टेटिस्टिक्स में मीन फाइंड करने के लिए, तो मीन फाइंड करने के लिए एक मेथड हो गया डायरेक्ट मेथड। वो कैसे करना है, आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इतना आपको पहले से दिया हुआ होगा, आपको इसमें से ये कन्वर्ट नहीं करना है। पहले से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको इस पे से ये टेबल बनाना है, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो दिया हुआ है वो लिख लिया। फिर मिड पॉइंट ऑफ एक्स आई फाइंड करना है, एफ आई एक्स आई फाइंड करना है, फिर एडिशन करके सिर्फ डिवीजन करना है। ये अप्रोक्सीमेट मीन मिल गया, दैट इज योर डायरेक्ट मेथड। बट अभी इसमें डायरेक्ट मेथड में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जो सिग्मा एफ आई एक्स आई हम कर रहे हैं, जो एफ आई एक्स आई वो मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसमें एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है जब हम मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं विदाउट यूज ऑफ कैलकुलेटर और कंप्यूटर, ठीक है। तो एरर मैनुअल मेथड में एरर ज़्यादा हो जाएगी। डायरेक्ट मेथड के लिए जब भी एफ आई और एक्स आई बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, तब सिंपल दिया है तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, बट जैसे ऐसे कॉम्प्लिकेशन दिया हुआ है तो उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा है।
तो उसके लिए एक और मेथड है नेक्स्ट, दैट इज अज्यूम मीन मेथड. व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ xi and fi आर लार्ज, finding the product of xi and fi becomes tedious and time consuming also. So for that, next method is assume mean method, that is assume mean method. ठीक है. In this method we cannot do anything with fi. हमें फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, वो एज इट इज रहेगा. बट हम क्या करेंगे इसमें, वी हैव टू चूज वन ऑफ द एक्स एज assume mean. पहले से हमें एक assume कर लेना है कि मीन यही हो सकता है, उसके बेस पे से हम सारा कैलकुलेशन करेंगे. जैसे मेरा ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है आपको ये, और यहाँ पे आपको बोला है फाइंड मीन यूजिंग assume mean मेथड. समझ में आ रहा है. अगर कुछ नहीं बोला तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, बट अगर स्पेसिफाई किया है फाइंड द मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड तो आपको ये मेथड से करना है. अगर यहाँ पे बोला है फाइंड द मीन यूजिंग assume mean मेथड, तो मैं जो नेक्स्ट कर रहा हूँ सेम एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट मेथड कर रहा हूँ, तो टेबल हमारा यही रहेगा. क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज नहीं होगा, वही टेबल रहेगा. तो यहाँ तक का टेबल, ये पूरा टेबल हमारा सेम कॉपी कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है. सो क्लास इंटरवल, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मिड पॉइंट, ये हो गया xi. क्लास इंटरवल क्या हुआ है, क्या है 20 to 25, 25 to 40, 40 to 55, सेम कॉपी कर रहा हूँ मैं आगे से. 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100. स्टूडेंट्स भी दिया हुआ है मुझे, ये दिया हुआ होगा आपको कुछ टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है. 8, 25, 20, चलो यहाँ तक हो गया. ये आपका हो गया क्या, fi. ठीक है. अभी xi कैसे फाइंड करोगे, मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट जो हमने आगे फाइंड किया था. 25 + 10 डिवाइड बाई 2 तो हो गया 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 72.5, 92.5. यहाँ तक तो मेथड में कोई चेंज नहीं है. बट जैसे यहाँ पे बोला है हम फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज लिख दी. बट चूज वन वैल्यू ऑफ x एज assume mean. ये क्या कहना चाहता है कि जो हमारे पास xi है उसमें से किसी एक वैल्यू को हमें मीन अज्यूम करना है. जैसे मैंने यहाँ पे 62.5 है, उसको मैंने अज्यूम कर लिया, उसको डिनोट करना है बाय कैपिटल A. तो मैंने यहाँ पे कैपिटल A और स्मॉल है, जनरली हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे, तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया कैपिटल A, अज्यूम मीन. आप एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू को आप अज्यूम मीन ले सकते हो. 17.5 को भी ले सकते हो, 32.5 भी ले सकते हो, 92.5 को भी ले सकते हो, और इसमें नहीं है ऐसी वैल्यू जैसे 50, तो 50 को भी आप A कंसिडर कर सकते हो यहाँ पर. समझ में आ रहा है. बट फॉर सिंपलर कैलकुलेशन जो यहाँ से जनरली मिड में आता है वही आपको A कंसिडर करना है, तो वो कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा. ठीक है. अभी A अज्यूम कर लिया, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपको DI फाइंड करना है. इसमें एक DI आता है, वो हो गया हमारा xi माइनस A, जो हमने अज्यूम मीन किया है वो, और xi हर एक ऑब्जर्वेशन. xi यहाँ पे क्या हो गया 17.5, जैसे मैं यहाँ पे पहले का लिख रहा हूँ, ऐसा आपको लिखना नहीं है. माइनस A क्या है मेरा 62.5, तो ये सॉल्व करके यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 माइनस 17, तो ये आ रहा है -45. ठीक है. ये नेगेटिव सब्ट्रैक्शन आपको आता होगा, जो बड़ा है उसकी साइन देना है यहाँ पे, तो -45 आ गया. सिमिलरली तो xi माइनस A 32.5 माइनस 62.5, ये हो गया -30. 47.5 माइनस 62.5, ये हो गया -15. इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि xi माइनस है, xi 62.5 और A भी मेरा क्या है 62.5. सो 62.5 माइनस 62.5 दैट इज 0. देन xi अभी हो गया 72.5, उसमें से A सब्ट्रैक्ट करना है, 72.5 माइनस A मीन 62.5, सो 72.5 माइनस 62.5, तो ये हो जाएगा 15, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 30. ठीक है. DI मिल गया. अभी नेक्स्ट जैसे हम यहाँ पे FI XI कर रहे थे, यहाँ पे आपको करना है FI DI. XI हमारा कॉम्प्लिकेटेड था यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, पॉइंट में आ रहा था. अभी यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो.
45 5 ज़ा 30 21 ज़ा 20 15 इंटू 21, समझ में आ रहा है? तो ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 45 इंटू 5 दैट इज़ 225 माइनस 45 है और ये 5 तो माइनस 225, ये हो जाएगा माइनस 630 30 इंटू 21 21 3 ज़ा 63 और ऊपर एक ज़ीरो, यह आ जाएगा माइनस 315, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन तो ज़ीरो ही होता है, फिर ये हो गया 375 और ये हो गया 600, 3 2 ज़ा 6 0। क्लियर? अभी इसका एडिशन हम यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड कर रहे थे, अभी यहाँ पे हमें फाइंड करना है सिग्मा एफ आई डी आई। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे? पहले नेगेटिव वैल्यूज़ जो है उसका एडिशन कर देते हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ माइनस 225, साइन कंसिडर मत करो, सिर्फ वैल्यूज़ 630 315, जिसका थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन वीक है उसके लिए मैं समझा रहा हूँ। पहले जो नेगेटिव वैल्यूज़ है उसका हम एडिशन करेंगे तो हो जाएगा, सारी नेगेटिव वैल्यू का हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन। 5 + 5 10 3 5 6 7 11 1170, ठीक है, ये आ गया एडिशन। अभी जो पॉजिटिव वैल्यू उसका एडिशन करता है 375 + 600 तो हो गया 975, ठीक है। अभी इन दोनों आंसर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, दैट मीन्स 1170 975, ये सब्ट्रैक्ट करना है। ज़ीरो में से 5 पॉसिबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन आता होगा 6 का 16 और यहाँ से 0, 16 में से 7 तो ये आ गया आपका 9, ये 0 पॉसिबल नहीं है तो ये 0 10 - 9 दैट इज़ 1, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया, ये एडिशन हो गया और ये भी एडिशन हो गया, 195 आंसर आ गया। ओके, अभी देखो ये 1170 और 975, ठीक है। अभी इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 1170, इसकी साइन क्या है हमारी? नहीं, पॉजिटिव नहीं है, इसकी साइन नेगेटिव है, बिकॉज 225 भी नेगेटिव है, 630 भी नेगेटिव, 315 भी नेगेटिव, तो ये आपका कौन सा हो गया? नेगेटिव साइन वाला हो गया, ठीक है। तो इसका भाई साइन क्या आएगा? नेगेटिव, तो हो गया -195। इसे सिंपल और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आना चाहिए, तो -195 हो गया। क्लियर? यहाँ पे आपका सिग्मा एफ आई वो तो हमको पता ही है 100 है। क्लियर? ओके, तो एक्स बार इसका एक फॉर्मूला अज्यूम मीन, उसका एक फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई ए, दैट इज योर अज्यूम मीन। हमने क्या यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है 62.5, यहाँ पे आ जाएगा 62.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, वो क्या आया हमारा -195, तो यहाँ पे हो जाएगा -195 डिवाइड बाई एफ आई क्या है हमारा 100। सॉल्व करो 62.5 ये -1.95 तो ये आ गया 60.55, दैट इज योर एक्स बार। ठीक है, अज्यूम मीन से भी 60.55 आ रहा है, डायरेक्ट मेथड से भी 60.55 आ रहा है। अब कोई भी मेथड से करोगे आपका मीन चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं एनी वैल्यू ऑफ ए योर मीन does not change. For any value of a, your mean does not change. So therefore we can take value of any value of a or any non-zero value of a, not necessary that it is one of the value of xi. That means यहाँ पे हम a की वैल्यू कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि xi में से एक होना चाहिए। जैसे मैंने बताया आप a = 50 भी करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जनरली xi में से जो मिडल वैल्यू हो
वो कंसिडर करके आपको कैलकुलेशन करना रहेगा, तो वो सिंपल रहेगा कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है? तो बीच में एक जीरो आ जाएगा, ऊपर सारी नेगेटिव वैल्यू और नीचे सारी पॉजिटिव वैल्यू, तो आपका एडिशन करना भी सिंपल हो जाएगा। इसलिए हमें मिडल में से ऑलवेज ए अज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये मेथड आपका पूरा क्लियर हो गया, दैट इज अज्यूम मिन मेथड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। एक पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दिस मेथड इज एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस मेथड, मीन्स अज्यूम मिन मेथड। तो अज्यूम मिन मेथड ने हमने कहाँ तक किया था? डी तक किया था। तो डी तक एज इट इज़ पूरा टेबल बनेगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डी तक का टेबल, तो पहला तो हमारा क्लास हो गया, फिर हो गया एफ आई, फिर हो गया मिड पॉइंट ऑफ एक्स आई, फिर हो गया डी आई। सेम टेबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 15 के डिफरेंस में है, to 85, 85 to 100, फ्रीक्वेंसी 5, 21, 21, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, वो खास ध्यान रखना है हर एक में। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ठीक से नहीं रखा तो फिर से आपको एडिशन के लिए रफ काम में सारी वैल्यूज़ फिर से लिखनी पड़ेगी, टाइम आपका कंज्यूम होगा, फिर पेपर में आपको टाइम कम पड़ेगा। इसलिए आपको यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस लिख के ही सॉल्व करना है। मिड वैल्यू यहाँ पे 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, 92.5। डी आई क्या आ रहा है आपका? डी आई आ रहा है -45, -30, -15, -45, -15, 0, 50, सही है ना, और 30, तो डी आई। यहाँ तक तो हमारा मेथड चेंज नहीं होगा। दैट्स आई एम रिटन हियर, दिस मेथड इज एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस मेथड, दैट इज अज्यूम मीन मेथड। यहाँ पे हमने इसको ही ए अज्यूम किया है। एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे जहाँ पे आप ए अज्यूम कर रहे हो वहाँ पे ऐसे करके एक आप बॉक्स बना दो पेंसिल से, ऐसा एक बॉक्स बना देने का पेंसिल से, ठीक है? वो काम में आएगा आपको। जैसे यहाँ पे मैंने ये अज्यूम किया, तो यहाँ पे मैं एक ऐसा बॉक्स बना दूंगा पूरा, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट ए अज्यूम मीन हो गया। नेक्स्ट हमें इसमें फाइंड करना है यू आई। यू आई क्या होगा मेरा? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यू आई इज इक्वल्स टू, हर एक बार ये लिखना है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अभी एच एक नया टर्म आ गया, एच इज योर क्लास साइज। यहाँ पे क्लास साइज क्या है? एच इज इक्वल्स टू 25 माइनस 10, दैट इज 15। क्लास विड्थ, विड्थ हमने जो डिफाइन किया ना पहले 15, तो 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है? क्लास विड्थ एच, ठीक है? ओके, एक्स आई माइनस ए, दैट इज डी आई, एक्स आई माइनस ए। डिवाइड बाय हमें क्या करना है? एच करना है, डिवाइड बाय एच। एच हमारा 15 है, तो -45 डिवाइड बाय 15, दैट इज 3, 30 डिवाइड बाय 15, 2, 15 डिवाइड बाय 15, 1, ये तो 0 रहेगा, ये 1, और 30 डिवाइड बाय 15, दैट इज 2। यू आई हो गया, समझ में आया? और सिंपल हो गया ना डी आई से ये। अभी हम क्या कर रहे थे आगे? पहले हमने सिर्फ एफ आई एक्स आई किया, चलो ये कॉम्प्लिकेट हो गया, तो हमने एक और सिंपल मेथड निकाली, अज्यूम मिन मेथड। इसमें हमने एफ आई डी आई किया। यहाँ पे और बड़े वैल्यूज आ रहा है, तो हमने एक और यहाँ पे सिंपल कर दिया, उसको हम यू आई फाइंड कर रहे हैं। यू आई फाइंड कर लिया, फिर हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं एफ आई यू आई। अभी मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। 22 1 2 जा 42, 21 1 जा 22, 0, 25 1 जा 25, और 22 जा 40। पहले किया सिग्मा एफ आई एक्स आई, फिर सिग्मा एफ आई डी आई, और यहाँ पे होगा सिग्मा एफ आई यू आई। इसका एडिशन कर दो। एडिशन जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही करना है। पहले नेगेटिव नंबर का एडिशन करो, यहाँ पे लिख दो जो आंसर आ रहा है वो। इसका आंसर क्या आएगा? -78। इसका यहाँ पे लिख दो 65। फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, 78 - 65 दैट इज 13। और बड़ा कौन सा है? 78, उसकी साइन माइनस लग, ठीक है? क्लियर? यहाँ तक तो सब सेम है। अभी इसमें एक, जैसे यहाँ पे हमारी फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला में चेंज आया, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे हमने जैसे यू आई फाइंड किया है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला में चेंज आएगा। तो हमारी नेक्स्ट फॉर्मूला है
एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यहाँ तक तो सेम, बट इंटू एच। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके साथ क्लास विड्थ एच जो है उससे मल्टीप्लाई करना है। एच ए हमारा सेम 62.5 था, अज्यूम मीन। अभी सिग्मा एफ आई यू आई क्या है, -13। सिग्मा एफ आई मीन्स इसका एडिशन, वो तो हमारे पास पहले से ही है, एक ही एग्जाम्पल किया है सब में, तीनों मेथड, दैट इज 100। और क्लास विड्थ क्या है 15, समझ में आ रहा है। तो 62.5 प्लस दैट इज -0.13 इंटू 15, 62.5 माइनस 1.95, अगेन 60.55 एक्स बार। अगर आप स्टेप डेविएशन से करो तो भी 60.55 आएगा, अज्यूम मीन से करो तो भी 60.55 आएगा, डायरेक्ट मेथड से करोगे तो भी 60.55 आ जाएगा। तो मीन फाइंड करने की 3 मेथड हो गई, एक डायरेक्ट मेथड, एक अज्यूम मीन मेथड एंड एक स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, सबसे सिंपल मेथड ये हो जाएगा क्योंकि आपको कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये अज्यूम मीन मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड पूछे तो भी यही करना है, अज्यूम मीन मेथड। क्लियर। अभी स्टेप डेविएशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, दिस मेथड विल बी कन्वीनियंट टू अप्लाई इफ द क्लास लेंथ इज कॉन्स्टेंट। क्लास लेंथ इज कॉन्स्टेंट मीन्स हर एक में क्लास लेंथ क्या है, यहाँ पे 15, यहाँ पे भी क्लास लेंथ क्या है 15, यहाँ पे भी क्लास लेंथ 15 है। अगर क्लास लेंथ यहाँ पे आपकी डिफरेंट होगी, जैसे यहाँ पे 10 to 25, फिर 25 to 30, 30 to 55, 55 to 60, ऐसा कुछ हो गया, तो आप स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कैसे करोगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट आपको सिर्फ स्टेप डेविएशन तभी अप्लाई करना है जब आपको क्लास विड्थ सेम दिया हुआ हो। ठीक है, अगर क्लास विड्थ सेम नहीं है तो आप आइदर अज्यूम मीन मेथड करो या फिर डायरेक्ट मेथड करो, कैसे भी कर सकते हो। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी क्लास विड्थ सेम ना हो तब आप स्टेप डेविएशन मेथड मत करना, ओनली आगे जो हमने 2 मेथड देखा वही करना है। बट जब क्लास विड्थ सेम दिया हुआ है तो आप स्टेप डेविएशन से करोगे तो आपका आंसर फटाफट और जल्दी आ जाएगा और करेक्ट भी होगा 101%। क्लियर, उसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, क्लियर। सो मैं जो अनरेगुलर क्लास इंटरवल है उसके लिए स्टेप डेविएशन मेथड कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताऊंगा, बट वो आपको यूज़ नहीं करना, वो ध्यान रखना। क्लियर। थैंक यू गाइस, कीप लाइकिंग माय वीडियोस एंड काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।